آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس کو اگر شاعر کی زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جولی میں اپنی رکھ لیں، ہمارے حصے میں عذر آئے، اصول آئے، جواز آئے۔ اور اگر کسی دیوانے کی زبان میں کہا جائے گا، اور مجھے تو یہ بالکل دیوانوں والے ایگریمنٹس لگتے ہیں کہ جس میں کوئی دیوانہ کہہ رہا ہو کہ پیار کی اس راہ میں، محبت کے اس سفر میں جو خسارے ہوں گے وہ سارے میرے ہوں گے اور جو نفع ہوں گے وہ سارے آپ کے ہوں گے۔ گویا کہ ایک دیوانہ یوں کہہ رہا ہے کہ محبت کی اس راہ میں، پیار کے اس سفر میں جیت ہوگی تو بس تیری اور ہار صرف میری ہو۔ ناظرین، پاکستان میں ہمارے حکمرانوں نے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو اندھیروں سے نکالا ہے، در حقیقت ہمیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اندھیروں سے نکال کر ہمیں تاریکیوں میں پہنچا دیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی شخص کو مچھر کاٹ رہا ہو اور آپ اسے اٹھائیں اور کہیں کہ میں آپ کو اس تکلیف سے نکالنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے وہاں سے اٹھا کے کسی بڑے مگرمچھ کے آگے ڈال دیں اور وہ مگرمچھ اسے نوچ کر کھا جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو مچھروں کے آگے سے اٹھا کے مگرمچھ کے آگے ڈالنا کیا اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے یا اس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے چکر میں، ہمیں لوڈ شیڈنگ سے نکالنے کے چکر میں آئی پی پیز کے بڑے مگرمچھوں کے آگے جس طرح سے ڈالا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں، کیپیسٹی چارجز یعنی کہ وہ بجلی جو ہم نے خریدی بھی نہیں، اس کی قیمت ہم نے پچھلے 5 سالوں میں 6,000 ارب روپے سے زائد ادا کی ہے۔ جی 6,000 ارب روپے، اور اس دفعہ آپ کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 18,000 ارب روپے کا ہے۔ گویا کہ تیسرا حصہ اپنے بجٹ کا آپ پچھلے 5 سالوں میں آئی پی پیز کو دے چکے ہیں، اور آپ کی اس سال ٹوٹل انکم پتہ کیا ہے؟ آپ کا ملک اس سال ٹوٹل 9,000 ارب روپیہ جمع کر رہا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک سال کی جو آپ کی آمدن ہے اس میں آدھی سے زائد، بلکہ 2 حصے، 3 حصے کر لیں تو 3 میں سے 2 حصے آپ پچھلے 5 سالوں میں آئی پی پیز کو ادا کر چکے ہیں۔ پچھلے مالی سال میں آپ نے 1300 ارب روپے سے زائد رقم کیپیسٹی چارجز کے مد میں دیے، اور اس سال بجٹ میں 2010 ارب روپے آپ کیپیسٹی چارجز کی مد میں آئی پی پیز کو دینے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھیں کہ ہر مہینے آپ کو 150 ارب روپیہ آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینا پڑ رہا ہے۔ کیپیسٹی چارجز یہ ہے کہ آپ نے بجلی خریدی نہیں، انہوں نے بجلی بنائی نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کی ادائیگی کریں گے کیونکہ یہ ایگریمنٹس ہیں۔ اور میں اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ ہم دنیا کی مہنگی ترین بجلی خرید رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم دنیا کے پاس پیسے لینے کے لیے جا رہے ہیں اور ان سے مانگ تانگ کے لا رہے ہیں، اور آ کے ہم نوابوں کی طرح انہیں بھی پیسے دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دیے ہی کچھ نہیں، جنہوں نے ہمیں بجلی ہی نہیں دی۔ اور دوسری طرف میں اس کی آپ کو تفصیلات بھی بتاتا ہوں، لیکن آپ کو میں ایک بات ابھی بتا دوں کہ ایک پاور پلانٹ ایسا بھی ہے کہ جس سے ہم نے جو بجلی خریدی ہے، اگر اس کی بجلی اور جو ہم نے اسے پیسے دیے ہیں اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس سے حاصل بجلی ہمیں 750 روپے کا ایک یونٹ پڑا ہے۔ دل تھامیے، جی 750 روپے کا ایک یونٹ۔ اور اگر ہم اوور آل یہ جو ایندھن سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس کی بات کریں تو اس میں اگر مجموعی طور پر ہم حساب لگائیں تو 200 روپے پر یونٹ ہمیں بجلی پڑ رہی ہے۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے جو ہم آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس کرنے کی وجہ سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1991 میں
पाकिस्तान 60% जो उसको बिजली चाहिए थी पाकिस्तान को, उसमें से 60% बिजली पानी से पैदा करता था। चाहिए ये था कि हम पानी से बिजली पैदा करने के लिए मज़ीद कोशिश करते, डैम्स बनाते और हम उस तरफ जाते, लेकिन हमने IPPs की तरफ जाना शुरू किया। तो इस वक्त हम 26% बिजली सिर्फ पानी से बना रहे हैं, बाकी सारी बिजली हमें दुनिया के महंगे तरीन ईंधन से बनानी पड़ रही है। मैं आपको कुछ तफसीलात बताने जा रहा हूं कि ये जो IPPs की कंपनियां हैं ये किन की हैं, इनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स क्या हैं। पिछले 1 साल में, याद रहे ये डाटा सिर्फ 1 साल का दे रहा हूं, पिछले 1 साल में हमने इनको कितने कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे दिए हैं। सबसे पहले नाम आता है जी सलमान शहबाज का। सलमान शहबाज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, इनकी चन्योट पावर लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, और जो गन्ने का जो फोक होता है, गन्ने का रस निकाल के जो पीछे बचता है ना, याद रखें ये भी इन लोगों का देखें कितना महंगा बिकता है कि वो गन्ने का जो फोक है वो डिक्लेयर किया गया है कि ये इंटरनेशनल मार्केट से जो कोयला आता है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला, वो हमें पाकिस्तान में महंगा पड़ता है, खासा महंगा पड़ता है, वो महंगा ईंधन है, उसके तनासुब से इसका रेट लगाया जाएगा, उस फोक से बिजली पैदा की जाएगी और रेट उसका जो इंपोर्टेड कोयला है उसके तनासुब से लगाया जाएगा। तो ये जो पावर प्लांट है इसके साथ एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, और 33% इसने बिजली बना के दी है। 1 अरब 55 करोड़ रुपए इसको अदा किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अभी सस्ता है बाकी पावर प्लांट्स की निस्बत से, क्योंकि इसमें दीगर पावर प्लांट्स की तरह कैपेसिटी चार्जेस नहीं देने पड़े। आगे बढ़ते हैं, आगे जहांगीर खान तरीन साहब आते हैं और वो 3 कंपनियों के मालिक हैं और उनके साथ 64 मेगावाट बिजली पैदा करने का पाकिस्तान ने मुआहदा कर रखा है, जो 2043 तक का मुआहदा है। 2043 तक हम पाबंद हैं उनसे बिजली लेने पर, और वो मुआहदा ये है कि वो हमें बिजली देंगे, और उनको गुज़श्ता 1 साल में 86 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में। दूसरा हम अब्दुल रज़ाक दाऊद की तरफ चलते हैं। ये वही अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं जो इमरान खान के साबिक मशीर भी हैं और इमरान खान की कैबिनेट में भी मौजूद थे। इनके साथ एग्रीमेंट ये है कि 2029 तक ये हमें बिजली देंगे और 450 मेगावाट बिजली पैदा करके देंगे, जबकि इन्होंने पिछले साल सिर्फ 4% बिजली पैदा की है। सिर्फ 4% हमने इनसे बिजली ली है, जबकि इनको हमने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1 साल में 6 अरब 88 करोड़ रुपए अदा किए हैं। जी, 6 अरब 88 करोड़ रुपए हमने कैपेसिटी चार्जेस की मद में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को अदा किए हैं। आगे चलते हैं, नदीम बाबर साहब, इनको भी आप जानते होंगे, इमरान खान साहब की कैबिनेट में मौजूद थे और इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते थे और वफाकी वज़ीर थे और इमरान खान की काबीना में ये हुकूमत का हिस्सा रहे। इनकी 2 कंपनियां हैं, 2029 तक इनके साथ एग्रीमेंट है, 134 मेगावाट बिजली पैदा करके देने के ये पाबंद हैं, जबकि इनसे बिजली हमने सिर्फ 11% ली है। सिर्फ 11% बिजली लेके हमने इनको 3 अरब 13 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे दिए हैं। आगे चलते हैं जी, नदीम बाबर की दूसरी कंपनी है जिसमें वो किसी के शराकतदार हैं, पार्टनर हैं, उनके साथ 2032 तक का एग्रीमेंट है और 229 मेगावाट बिजली पैदा करके देने के वो पाबंद हैं। 32% बिजली पैदा हुई और उनसे हमने सिर्फ 32% बिजली ली, लेकिन 5 अरब 80 लाख रुपए हमने उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए। आगे मियां मंशा साहब हैं, 4 इनकी कंपनियां हैं। पहली कंपनी 2027 तक इनके साथ एग्रीमेंट है, 362 मेगावाट बिजली पैदा करके देने का ये मुआहिदा रखते हैं। सिर्फ 25% बिजली पैदा हुई और 8 अरब 48 करोड़ रुपए इनकी एक कंपनी को कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। इनकी दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, 2026 तक उनके साथ एग्रीमेंट है, 365 मेगावाट बिजली पैदा करके देने के पाबंद है, सिर्फ 20% बिजली पैदा की और 8 अरब
51 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में वसूल किए। इनकी तीसरी कंपनी है और जिसके साथ 2035 तक मुआहिदा है, 200 मेगावाट बिजली पैदा करके देने के पाबंद हैं, जबकि सिर्फ 19% बिजली पैदा करके दी। 4 अरब 17 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में इन्होंने तीसरी कंपनी ने वसूल किए। इनकी चौथी कंपनी है, 2034 तक उनके साथ एग्रीमेंट है और 200 मेगावाट का उनके साथ एग्रीमेंट है, 30% बिजली पैदा की है और 4 अरब 54 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में वसूल किए हैं। चाइना की हिब नामी कंपनी है और ये हब नामी कंपनी या हिब नामी कंपनी जो है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस वसूल करती है और पिछले 1 साल में इसने रिकॉर्ड कायम किया है इस हब नामी कंपनी ने कि इसने सबसे ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस वसूल किए हैं। 132 मेगावाट बिजली पैदा करके देने का मुआहदा है, सिर्फ 15% पैदा की है। 142 अरब 82 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में इसने वसूल किए हैं। आगे हम पोर्ट कासम की तरफ बढ़ते हैं। ये एक कंपनी है जो मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी दोस्त और बल्कि वो कि जिनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने नवासे मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनेद सफदर की शादी जिस शख्स की बेटी से की थी, उनकी ये कंपनी है और उन्होंने कतर की एक कंपनी के साथ मिलकर ये कंपनी बनाई हुई है। और ये जो कंपनी है इसके साथ मुआहदा है 1320 मेगावाट का और 18% सिर्फ 18% बिजली पैदा करके दी। 121 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में वसूल किए गए। आगे शंघाई इलेक्ट्रिक थर्कोल पावर है, ये एक चाइनीज़ कंपनी है और 1320 मेगावाट का इसके साथ एग्रीमेंट है। सिर्फ 68% बिजली पैदा हुई है। 121 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1 साल में इन्हें अदा किए गए हैं। 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की, एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की, बिल्कुल सिर्फ 0 मेगावाट की पैदावार के साथ उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए लिए हैं और बगैर उनसे एक भी यूनिट बिजली लिए हमने उनको अरबों रुपए दिए हैं, क्योंकि ये IPPs के मुआहदे हैं। मुझे ये बताएं कि इस किस्म के मुआहदे चाइना जैसा मजबूत तरीन मुआशी तौर पर जो समझा जाता है मुल्क वो भी करे तो मेरे ख्याल से चंद सालों में वो भी कंगाल हो जाए, क्योंकि जिसमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, मुफ्त के आपने पैसे देने हैं, नफ़े सारे उनके हैं, खसारे सारे आपके हैं। तो ऐसे जो मुआहदे हैं ये करने वाले मुझे ये बता दें कि अक्लमंद इंसान तसव्वुर किए जा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।